So parts of cerebrum. So outermost part of, okay, so largest part of your brain is nothing but the cerebrum. Largest part of brain is nothing but the cerebrum. As you can see, this is known as the cerebrum. So outermost part of cerebrum is known as the cerebral cortex, and inner part is known as the cerebral medulla. The medulla or cerebrum. Then in the brain only, this is known as a cerebrum. Okay. Diencephalon, it is known as a prosencephalon. Okay, cerebrum. Diencephalon में आता है thalamus, pineal body and hypothalamus. So they are situated below the cerebrum. This area is known as the diencephalon. Diencephalon comprising of your thalamus, hypothalamus and hypothalamus. Just a minute. थैलेमस पिनियल बॉडी में आपका पिनियल ग्लैंड होता है एंड हाइपोथैलेमस पिनियल बॉडी दे कंप्राइज ऑफ योर डायनसेफेलॉन. देन दिस पार्ट इज नोन एज सेरेबेलम which is situated dorsally to the brain. These three parts, midbrain, pons and medulla, these three parts, they are known as a brainstem. Midbrain, pons, medulla oblongata, they are known as a brainstem. So this is your brain. Then spinal cord will arise from the medulla oblongata. So in the medulla oblongata there are various different kind of centers like respiratory centers, then temperature centers, then cardiovascular centers. Okay, both are centers. So medulla oblongata में होते हैं, they regulates the various vital function of your body. Medulla oblongata regulates the various function of your body because vital centers are present. Now cerebellum is mostly related with the labyrinth function. It is related with the balancing and coordination function of your body. Okay, mostly autonomic जो काम होते हैं बॉडी के वो cerebellum associate होता है उससे. It is known as a left lateral ventricle. It is known as a right lateral ventricle. Then it is known as a third ventricle, and this is known as a fourth ventricle. So in these ventricles there is a network of capillary known as a choroid plexus, where there is a formation of cerebrospinal fluid that is made 0.5 ml per minute, and around 120 ml of CSF is constantly circulating in the brain and spinal cord. बाद में ये spinal cord की तरफ मूव हो जाएगा CSF. Now meninges. So you can say outer layer is known as a dura mater. Outer layer in the brain in dura mater. Okay. Inner layer is known as a pia mater. Okay. Pia mater or pia mater. And in between dura mater, okay, in between pia mater, middle layer is known as a arachnoid mater. Inner layer is known as a pia mater. Okay. Now in between the arachnoid mater and pia mater there is a subarachnoid space. इसमें क्या होता है, CSF होता है. It is also CSF. So CSF will nourish your brain, will also cause productive function, will also phagocytosize if any infection is there. It also acts as a shock absorber. Brain, normal weight of brain is around 1.4 kg. Brain lies in the cranial cavity. Okay. Parts of brain we have one cerebrum, thalamus, hypothalamus, midbrain, pons, medulla oblongata and cerebellum. So these are the parts. Cerebrum is the largest part of brain. Now it is divided into different hemispheres. Okay? Two hemispheres, left and right hemispheres. The area of cerebrum is divided into 5 lobes. जो cerebrum है उसका भी 5 lobes divided किया है. So first is known as the frontal lobe. Okay, so this part is known as the frontal lobe. Okay, then parietal lobe and temporal lobe. Okay, then parietal lobe and temporal lobe. So this one is known as temporal lobe, and this one is known as the parietal lobe. So this different area frontal lobe will have different work, different sensation. Then
टेम्पोरल लोब में डिफरेंट सेंसेशन होगा, वहाँ पे वो कैरी किया जाएगा। पैराइटल लोब में डिफरेंट होगा। दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस वन इज नोन एज ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब, पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब। फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, मोटर स्पीच एरिया इज नोन एज ब्रोकास एरिया, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। सो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, कौन सा फंक्शन कहाँ पे कैरी किया जाता है इसको। मोटर स्पीच एरिया ऑफ cerebrum is known as the Broca's area. Primary motor area, sensory area, cerebral cortex includes somatosensory area, auditory area, olfactory area. मतलब हर एक किस में अलग अलग ये है काम, उसका फंक्शन है. Every area of brain has different function. You can see in the frontal cortex, premotor area and primary motor area is there. Then in the only frontal area, motor speech area is there, that is known as the Broca's area. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सोमेटिक सेंसरी एरिया, सोमेटिक नर्व का सेंसरी, सोमेटिक नर्व का सेंसरी एरिया कहाँ पे, you can see in the yellow portion. Speech area, sensory speech area known as the Wernicke's area, sensory speech. Taste area होता है यहाँ पे, auditory area. Taste area is responsible for the sensation of taste. Okay, motor Broca's area is responsible for the motor speech Broca's area. Okay, like that. Motor function is the responsibility of primary motor area. Somatosensory area carries the sense of somatic nervous system, somatic nerves. Sensory speech area, like this. These are the different areas of brain, different functional areas of cerebrum को याद रखना है. Hypothalamus consists of a pituitary gland and function of hypothalamus includes autonomic nervous system, appetite, thirst, water balance, body temperature balance, emotional reaction, sexual behavior and sleeping and working cycle. Hypothalamus is most of the control. So hypothalamus also consists of a endocrine gland known as a pituitary gland. It is known as a master gland of your body. And function of hypothalamus include autonomic nervous system का function like appetite, then thirst, water balance, body temperature, emotional reaction, sexual behavior, sleep, body walking cycle. Cerebrum will have different area like frontal lobe, then lateral, okay, then temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe. Okay. So depending on the functional areas of brain, so वहाँ पे कौन से function होंगे, like functional areas of brain includes motor, speech or Broca's area, primary motor area, sensory area, cerebral cortex, includes somatosensory area, auditory area and olfactory area. Auditory is responsible for the hearing, olfactory responsible for the smell. ठीक है, somatosensory for the senses of somatic nerve. Hypothalamus consists of pituitary gland and what are the functions? Includes the autonomic nervous system function, then appetite, regulation of appetite, etc. Thirst, water balance, body temperature, regulation of body temperature, emotional reactions, sexual behavior and sleeping, walking cycle. Vital center present in the brain. Vital centers present in the brain. So vital center present in the medulla oblongata like cardiovascular center, respiratory center, reflex center, okay, coughing, sneezing, swallowing, mating centers. These are the centers present in the your hypothalamus. So hypothalamus में वाइटल सेंटर्स होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, यू हैव टू रिमेंबर. इसे सपोज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर,
what will happen? Baroreceptor will send the message to the brain. Okay, that message will be recognized by medulla oblongata because cardiovascular center is present in the medulla oblongata, and brain will signal that there is a release of noradrenaline, and it will stimulate. Some drugs directly stimulate the cardiovascular center. Okay. Coughing, sneezing, surging centers are also there in the medulla oblongata. 12 pairs of cranial nerve जो है, what are those? Cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves. Out of that, first is known as a olfactory nerve. So it is a sensory type of nerve and responsible for the sense of smell. Olfactory nerve responsible for the sense of smell. It is known as a first cranial nerve, olfactory nerve. Sensory nerve होता है, ठीक है. Second nerve is a optic nerve. It is again sensory. So sense of sight, maintenance of balance, orientation of head. आपका जो हेड जो होता है, स्टेट होता है, उसका रीजन भी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही बैलेंस होता है. ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड. थर्ड नर्व होता है नोन एज ऑक्यूलोमोटर नर्व. इट इज ऑक्यूलोमोटर, एज द नेम इंडिकेट, मोटर मीन्स मोटर. मोटर मीन्स इट हैज अ फंक्शन विद द मसल. So muscle of eyes, ciliary muscle, circular muscle of eyes. So adjustment to the साइड. ब्राइट लाइट हो गया तो आप एडजस्ट कर रहे हो, तो आपका पिपिल क्या होगा, साइज कम होगा ब्राइट लाइट में. डीम लाइट है तो आपका पिपिल साइज बड़ा हो जाएगा. दैट इज डन बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व कनेक्टेड विद द मसल्स ऑफ आइज. ट्रॉक्लियर नर्व, इट इज अ सुपीरियर ऑब्लिक आइज ऑफ मसल. इट इज अगेन अ मोटर नर्व. ट्रॉक्लियर. ट्राइजेमिनल नर्व, सो इट इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ नर्व. फिफ्थ cranial nerve इज अ ट्राइजेमिनल नर्व. क्वेश्चन आ चुका है. Trigeminal nerve is the fifth cranial nerve. Largest cranial nerve कौन सा होता है? Trigeminal nerve. क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बोला है. Largest cranial nerve is a trigeminal nerve. Sensory and motor function दोनों भी होता है उसमें. Transmission of impulse of pain, temperature, touch, movement and mastication. There is one disease known as a trigeminal neuralgia. डिसीज होता है trigeminal neuralgia. So inflammation of trigeminal nerve. Inflammation of trigeminal nerve known as a trigeminal neuralgia. Now what happens in this? इसमें क्या होता है? As this nerve is responsible for the transmission of impulse of pain. So trigeminal neuralgia में क्या होता है? There is an intense pain in your body. आपको कुछ नहीं हुआ है, ना ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, ना ही आपका कुछ लगा है, ना ही आपका कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, बट because of the inflammation of trigeminal nerve, so what is happening? There is an intense pain in your body. आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. होता है कई कई लोगों को कि उसको मालूम ही नहीं दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है मालूम नहीं. So that is due to trigeminal nerve inflammation. Inflammation of trigeminal nerve known as a trigeminal neuralgia, and that result in the impulse, that result in the unnecessary impulse to the pain. नॉर्मली ट्राइजेमिनल नर्व का काम होता है कि अगर पेन है कहीं पे तो इम्पल्स देना, लेकिन पेन नहीं है, लगा नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, फिर भी हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाइजेपिन. कार्बामाइजेपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. ठीक है, वो आप बाद में भी देख लेंगे उसको. नाउ नेक्स्ट होता है अब्डुसेंस नर्व. सो cranial nerve number 6. It is a motor nerve, supplies the it is supplied to lateral rectus muscle eyeball and causing the abduction. Abduction क्या होता है, adduction क्या होता है, मैं बताऊँ. So adduction means movement toward the body. Abduction means okay. जैसे ये हाथ है मेरा, मैंने खींच लिया तो इट इज नोन एज अ फ्लेक्शन. अगर रिलैक्स किया तो उसको नोट देते एक्सटेंशन. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. ठीक है. अबडक्शन मतलब क्या, टुवर्ड्स द बॉडी, एंड अडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज द टर्म्स फॉर इंडिकेशन ऑफ मूवमेंट्स. सो अबडक्शन. माधुरी दीक्षित ऐसे आइज को घुमा लेती है ना पूरा, तो उसका ये नर्व्स बहुत ही स्ट्रांग है अबडक्शन में. फेशियल नर्व होता है आपका एक, cranial nerve number 7 फेशियल नर्व.
Again, it is a mixed nerve as well as sensory as well as motor nerve. सेंसरी स्टिमुलस ऑफ टंग, टेस्ट बर्ड्स एंड मोटर मूवमेंट ऑफ टंग. आप जो है ना आपकी जीभ को पूरी तरह से घुमा लेते हो मुंह के अंदर. दैट इज ड्यू टू द फेशियल नर्व. नाउ इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशियल नर्व का कोई डैमेज हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम फेशियल पल्स. फेशियल पल्स और फेशियल पैरालिसिस इज आल्सो नोन एज अ बेल्स पल्स. बीपी बेल्स पल्स. यू माइट हैव सीन कुछ लोगों में क्या होता है, सडनली वो सब ठीक होता है, 2 दिन में उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है. So that is known as a facial palsy due to the damage to the facial nerve. So either inflammation of facial nerve or permanent damage to the facial nerve, you will suffer from facial palsy known as a Bell's palsy. किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर कर देते. कुछ का टेढ़ा ही रह जाता है, कुछ का ठीक हो जाता है. So if it is an acute inflammation of facial nerve, you will suffer from Bell's palsy. That is recoverable. But if there is a permanent damage, अगर फेशियल नर्व का डैमेज हो गया तो you will suffer from Bell's palsy permanently. फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं उसको. फेशियल पैरालिसिस और Bell's palsy. There is another nerve known as a cranial nerve number 8. It is known as the vestibulocochlear nerve. So it is responsible for the auditory area. Sensory nerve है, consists of vestibular and cochlear nerve. इसमें 2 nerve होता है, vestibulocochlear nerve. Vestibular nerve single होता है, cochlear nerve single होता है. So it is a combination of vestibular nerve plus cochlear nerve. So vestibulocochlear nerve function is nothing but the maintenance of posture and balance. नेक्स्ट होता है cranial nerve number 9, glossopharyngeal nerve. मिक्स्ड होता है. So stimulate the muscle of tongue and pharynx. Secretes the cell of parotid gland. Secretory भी होता है इसका. Parotid gland जो, so parotid gland is nothing but the salivary gland which secretes the saliva. Cranial nerve number 10 known as the vagus nerve, and this nerve is sublated to your GIT area. It is a mixed nerve. All gastrointestinal tract is innervated with this nerve. GIT is innervated with the vagus nerve. Important part of cholinergic nerve. Cholinergic nerves का important part है vagus nerve. Largest nerve trigeminal nerve, याद रखना है आपको. Cranial nerve number 11, accessory nerve, associated with the motor and supply of sternocleidomastoid and trapezius muscle. जो मसल होता है स्टर्नोक्लेविडो, स्टर्नम एंड क्लेविकल जो होता है उसके बीच में जो मसल होता है, मास्टोइड मसल, ट्रेपेजियस मसल, लैरिंजियल एंड लैरिंजियल मसल्स होते हैं. मोटर नर्व है, एसिड नर्व. Cranial nerve number 12, hypoglossal nerve. Again, it is motor contribute to swallowing and speech. These are the 12 cranial nerve. So we have seen the 31 pairs of cervical nerve and 12 pairs of cranial nerves are there. So out of that, these are the cranial nerves. You have to remember trigeminal nerve. It is the largest nerve, and inflammation of this is a trigeminal neuralgia. फेशियल नर्व का इन्फ्लेमेशन हो गया तो बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा. तो रिसेप्टर्स मतलब हाउ यू विल गेट सिग्नल विल बी recognized by receptors. So interoreceptor मतलब these are the receptors present inside the body. Okay? So they are classified into 2 types. Visceral receptor, visceral जो organs होते हैं, lungs, heart, kidney. So in that there are the visceroreceptors. So in that you have receptors like stretch receptors, baroreceptors responsible for the monitoring the pressure of blood. Stretch receptor responsible for the stretching of muscle. जैसे आपका डिस्टेंशन हो गया वेंट्रिकल्स का, if you are suffering from ventricular dysfunction, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं
And chemoreceptor responsible for the chemical change. Osmoreceptor responsible for the monitoring of osmotic pressure of the blood. स्टेज रिसेप्टर किस में होता है? हार्ट में होता है, एज आई टोल्ड यू. पैरारिसेप्टर किस में होता है? ब्लड वेसल. कौन सा? aorta. Chemoreceptor they are present in the GIT, gastrointestinal tract. हार्ट में भी, aorta में भी होता है. Osmoreceptor present in the urinary tract, also present in the brain. Proprioceptors मसल स्पिंडल रिसेप्टर होता है मसल में. गोल्गी टेंडन ऑर्गन होता है टेंडन्स में. कैसियन कॉर्पसल होता है आपका लिगामेंट में. फ्री नर्व एंडिंग होता है जॉइंट्स में, पीसी में. ईयर सेल्स में भी आपका रिसेप्टर होता है. ईयर सेल रिसेप्टर. वेस्टिबुलर एपरेटस. इंटेरो रिसेप्टर. एक्सटेरो रिसेप्टर ये बाहर का. तो क्यूटेनियस रिसेप्टर. क्यूटेनियस मतलब स्किन के ऊपर रहेगा आपका. ओके. टच सेंसेशन. Touch sensation is carried by Meissner corpuscle and Merkel disc. Meissner corpuscle और Merkel disc याद रखना है. Touch sensation is carried by Meissner. Pressure sensation is carried by Pacinian corpuscle. Cold sensation is carried by Kraut and bulb. मतलब ये रिसेप्टर होता है. Warm sensation is carried by Ruffini and organ. पेन सेंसेशन इज कॉल्ड बाय नोसिरेसेप्टर. नर्व एंडिंग के इसमें नोसिरेसेप्टर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन सेंसेशन. So these sensations they are carried to a cutaneous receptor and finally brain. Chemoreceptors. Taste receptor they are taste buds. From the taste buds, taste receptor will get a message. Sweet है ना, sweet है या फिर bitter है या फिर salty है. There are three type of taste: sweet, bitter and salty. Smell के लिए olfactory receptor होते हैं. मीन्स chemoreceptor. Tail receptor मतलब responsible for vision and ear. So rods and cone cells present in the retina they are responsible for the vision. Hearing, ear cells in the organ of quality in the ears. There are two type of peripheral nervous system. First is the autonomic nervous system and second one is the somatic nervous system. Somatic nervous system is under your control, voluntary control. Autonomic nervous system is not under your voluntary control. Autonomic nervous system is divided into two parts again: sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system will prepare you for either fight or flight. Parasympathetic nervous system will restore your normal condition. Okay. Sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system दो पार्ट होता है peripheral nervous system का. And these two nervous system works in the coordination manner. तो coordination manner में work करते हैं. ठीक है. Suppose you are in a jungle. आप जंगल में हो और वैसे भी आजकल जंगल है ही नहीं, है ना. जंगल का थोड़ा सा तनास हो चुका है. तो फिर भी आप मान लीजिए कि आप जंगल में हो and suddenly there is a tiger in front of you. आपके सामने एक टाइगर आता है. ठीक है. वैसे भी टाइगर भी अभी आजकल है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में बचे. जो भी बचे वो सब जू में पाए जाते हैं. बट सपोज करो आप जंगल में हो और टाइगर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? व्हाट विल बी योर एक्शंस ऑफ योर बॉडी? आपके सामने दो ऑप्शन है. अभी आपके सामने टाइगर आ गया तो दो ऑप्शन है. एक तो पहला ऑप्शन है आपको उसके साथ में फाइट करना है या फिर वहाँ से 9-2-11 हो जाना है. ठीक है. यू कैन आइदर फाइट विद द टाइगर और यू कैन फ्लाई डाउन दैट सिचुएशन. सो व्हेनेवर यू विल सी एनी थ्रेट, आप जैसे कोई थ्रेट देखते हो, डेंजर देखते हो, सो योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेटेड और विल स्टार्ट. सो व्हाट विल हैपन? So it will increase your heart rate. It will increase your heart rate, blood pressure. Okay, it will increase the heart rate, blood pressure. Then it will increase your pupil size. Mydriasis will be there. It will increase your skeletal blood vessel dilation. It will depress your GIT area. It will depress your secretions. It will depress your
urinary system. It will okay. देखो आपको टाइगर के साथ में लड़ना है, लड़ने के लिए आपके बॉडी में क्या चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए। क्या चेंजेस चाहिए? आपको सबसे पहले दिखना चाहिए प्रॉपरली, यू शुड हैव अ प्रॉपर विजन। नहीं तो फिर टाइगर वहाँ से पंजा मार रहा है, आप इधर देख रहे हो, आपका विकेट गिर जाएगा। ठीक है, सो यू नीड अ प्रिसाइज विजन। सो देयर इज अ माइट्रियासिस। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपका, उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएड्रेनालिन। Sympathetic nervous system will have or noradrenaline as a neurotransmitter, so it will be released and it will act on its different organs के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं। so you have alpha receptor, beta receptor in the which are the receptor for sympathetic nervous system, which are the receptor for noradrenaline is nothing but the neurotransmitter of sympathetic nervous system that will be released upon the activation of the sympathetic nervous system। ठीक है, आपके सामने टाइगर है, आपको उसके साथ लड़ना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका आपका एक्टिवेट हो चुका है, आपने देखा है थ्रेट डेंजर आपके सामने है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो चुका है, नॉरएड्रेनालिन ब्रेन में रिलीज हो चुका है। ब्रेन में वो क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अपना अपना एक्शन दिखाएगा। कौन से एक्शन सिंपैथेटिक के हैं, कौन से एक्शन पैरासिम्पैथेटिक, वो देखना है आपको। ठीक है, सो noradrenaline will be released, it will go in the heart, it will stimulate the beta 1 receptor, will increase the heart rate, force of contraction and blood pressure. By acting on alpha receptor, it will increase the peripheral resistance and blood pressure. Okay, so अल्फा में टाइप होता है, वो टाइप अलग है, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे प्राइमरीली समझ लेना है। So increase in the heart rate is a okay, so different responses of sympathetic and parasympathetic nervous system on a different organ। so जैसे आपके सामने टाइगर आ गया तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सिंपैथेटिक एक्शन। ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो आपके डायलेट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको टाइगर के साथ में लड़ना है। तो लड़ने के लिए आपको ब्रोंकोडाइलेशन होना जरूरी है, आपको सांस तो आना चाहिए ना, ब्रोंकोडाइलेशन। क्योंकि आपको लड़ने के लिए क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, एनर्जी का मसल में लगने वाला है, तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, तो स्केलेटल वेसल डायलेशन होगा। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा तो ब्लड उसको ज़्यादा जाएगा, ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो ग्लूकोज रिलीज होना चाहिए। इंडिविजुअल एक्शन देखो, पहले क्या है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेशन हो जाएगा। स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस, आपका आइज जो है उसमें पिपिल का डायलेशन हो जाएगा। आपको प्रिसाइज विजन, आपको दिखना चाहिए ना टाइगर कहाँ से पंजा मार रहा है। फॉर दैट सलाइवरी ग्लैंड डिक्रीज इन द सिक्रेशन, तो आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। टाइगर को देख के मुंह में पानी किसको आता है, नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली सलाइवरी सप्रेशन विल बी देयर। स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन डिक्रीज इन द पेरिसाइज। जब आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो तो उसको आप बोल नहीं सकते, टाइगर साहब 2 मिनट रुको, टाइम प्लीज़, मैंने कुछ नाश्ता पानी नहीं किया है, मैं थोड़ा सा खा के आता हूँ। सो there is a decrease in the peristalsis, suppression of GIT, okay, glands and others stomach intestine, so decrease in the glandular secretion, जो भी आपका HCl का secretion है, आपका पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, सब secretion बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी लगने ही नहीं वाला ना, आप लड़ रहे हो उसके साथ में, टाइगर के साथ में, तो खाना खाने के बाद में ये secretion आएंगे, तो आप खाना ही नहीं खाएंगे। So all the secretions will be inhibited, heart rate will be increased, skeletal blood vessel dilation will be there, pupil dilation will be there, salivary gland will be suppressed, GIT will be suppressed, okay, anal sphincter, internal anal sphincter, it will contract to prevent the defecation। टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, उसको बोलेंगे सर टाइगर साहब टाइम प्लीज, मुझे थोड़ा सा जाके आना है 2 नंबर को, नहीं। So in that situation, in the threat condition, adrenaline will act on a muscle of sphincter, it will cause contraction of muscle, sphincter muscle of internal anal, and there is a closing of that anus, that's why there is no defecation। then urinary bladder, उसके ऊपर भी जब urinary bladder will be relaxed so that accumulation of urine will be there, and sphincter will be closed, urethral sphincter will be closed up because of the contraction। so closure of, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ब्लैडर आपका ऐसा ब्लैडर है, ठीक है,
तो ये अगर बड़ा हो गया तो इसमें और ज़्यादा यूरिन समा सकता है. सो देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्लैडर ड्यू टू ब्लैडर मसल रिलैक्सेशन, सो दैट यूरिन विल बी accumulated in the bladder. एंड जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर इज क्लोज्ड ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर, सो नो पासिंग ऑफ यूरिन. तो आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, उसको बोलेंगे साहब 1 मिनट रुको, थोड़ा 1 नंबर के लिए जाके आता हूँ, तो रुकेगा नहीं. सो ड्यूरिंग द थ्रेट कंडीशन योर all GIT will be suppressed, your secretions will be suppressed, your urination will be suppressed, your defecation will be suppressed. Smooth muscles of skeletal blood, smooth muscle of blood vessel and skin and viscera. स्किन का ब्लड वेसल्स और विसरल ब्लड वेसल क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा. स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटल मसल, डायलेशन होगा. आपका स्केलेटल मसल, आपके हाथ में बाइसेप ट्राइसेप, आपका थाइस, आपको उसको लात मारना है, गुस्सा मारना है, आपका मसल का वर्क ज़्यादा हो रहा है टाइगर के साथ में फाइट करते समय, स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेशन होगा ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जा सके. मोर ब्लड शुड बी सप्लाइड टू स्केलेटल ब्लड वेसल, स्केलेटल मसल फॉर द वर्किंग. सो स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेशन. लीवर में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. लीवर में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, सो ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन डाउन, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी. इन द पैंक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रेशन. ग्लूकागॉन सिक्रेशन क्यों होगा, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन बनाता है ना, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, इसलिए. एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड में क्या होगा, इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एंड नॉर एड्रेनल. सो दीज आर द रिजल्ट्स और रिस्पॉन्सेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब आप टाइगर के सामने हो, आपको उसके साथ में लड़ना है, तो आपको एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज रिलीज होगा लीवर में से, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, तो आपको स्केलेटल ब्लड सेल, स्केलेटल मसल में ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेशन होगा. आपको उसके साथ में लड़ना है, प्रिसाइज विजन चाहिए आपको, तो माइड्रेसिस होगा. जब लड़ रहे हो तो आपका GIT का सिक्रेशन का कुछ काम ही नहीं, तो वो सप्रेस होगा. यूरिनरी सिस्टम का कुछ काम नहीं, वो सप्रेट होगा. सो ड्यूरिंग द फाइटिंग यू विल नेवर फील फॉर यूरिनेशन. ड्यूरिंग द फाइटिंग यू विल नेवर फील फॉर डिफेक्शन. ड्यूरिंग द फाइटिंग यू विल नेवर फील फॉर हंगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, these are the actions of sympathetic nervous system which will prepare you for fight or flight. फाइट करने के लिए ये एक्शन, अभी भागने के लिए भी वही एक्शन लगने वाले. ठीक है, भागने के लिए कौन से एक्शन लगेंगे, वही. सो जैसे आप टाइगर देखते हो, आप घबरा जाते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका पिपिल डायलेट होगा. क्यों होगा डायलेट, उससे भागने के लिए जंगल में से टाइगर के देख के भाग रहे हो, आप आंखें बंद करके भाग रहे हो, क्या होगा, सामने एक पेड़ आएगा, पेड़ के ऊपर टकराओगे, वहीं पे मर जाओगे. टाइगर तो बाद में खा लेगा, आपका विकेट पहले ही गिर जाए. राम नाम सत्य. ठीक है, तो होता क्या है कि यू नीड अ प्रिसाइज विजन सो दैट माइड्रेसिस विल बी देयर. सो फॉर द रनिंग, अगेन रनिंग करने के लिए आपको स्केलेटल मसल का वर्क होना चाहिए, आपके थाइस मसल. सो स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेशन. ठीक है, राइट. भागते समय आप ये नहीं बोल सकते टाइगर साहब 1 मिनट रुको, आप ही थक गए हो, मैं भाग के 1-2 मिनट में थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, यूरिन कर लेता हूँ, या फिर डिफिकेशन कर लेता हूँ. नहीं. सो ड्यूरिंग द रनिंग आल्सो यू विल नॉट हैव फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ डिफिकेशन. सो एट द टाइम ड्यूरिंग रनिंग के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, तो सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन विल बी देयर इन द लीवर. सो ऑल द एक्शंस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन जो है वही है. सो इट विल प्रिपेयर यू फॉर फाइट और फ्लाइट. सो ओके, नाउ अनदर एक्शन इज देयर, another system is there known as a parasympathetic system. So sympathetic nervous system prepares you for either fight or flight. It is also known as a adrenergic nervous system. Sympathetic nervous system को बोलते हैं adrenergic nervous system. Adrenergic nervous system क्यों बोलते हैं, because इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है adrenaline and noradrenaline. So it is known as a adrenergic system. Okay. Now it will prepare you for either fight or flight. Okay, and it is activated in situation where there is a threat. कोई डेंजर है, थ्रेट है, वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, और ये सारे चेंजेस करता है आपके बॉडी में. कितने चेंजेस है सर, और भी होते हैं. नाउ सपोज आपने जंगल में टाइगर के साथ लड़ लिया, या फिर लड़ना नहीं चाहा तो भाग लिए वहाँ से, भाग के घर पे आकर रुक गए. आप घर पे आए, तो घर पे मस्त सोफा पे बैठे हो, अंदर मम्मी ने मस्त खाना बनाया है, स्मेल आ रहा है आपको,
क्या होगा, आपका जब घर पे आके रिलैक्स हो जाओगे आप, तो आपका थ्रेट जो है ना टाइगर, वो आपको मालूम है कि अभी टाइगर जंगल में तो घर में थोड़ी आएगा। सो क्या करेंगे आप, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन, इट विल बी रिलीज। उसके न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन होता है, इट विल बी रिलीज। उसके रिसेप्टर होते हैं मस्कार्निक रिसेप्टर, निकोटिन रिसेप्टर, बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर होते हैं। विल सी व्हेन विल सी द चैप्टर इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्शन समझना है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम विच विल नॉर्मलाइज यू एंड विच विल प्रिपेयर यू फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एनर्जी एक्सप्रेस होता है, पैरासिम्पैथिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो आप घर पे भाग के आ गए, टाइगर नहीं है, थ्रेट नहीं है, तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा। सो डिक्रीज इन द हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट जो बढ़ा था आपके जंगल में टाइगर को देख के, वो कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा था आपका देख के कम हो जाएगा। डिक्रीज इन द हार्ट रेट अप टू नॉर्मल, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा अप टू नॉर्मल। ओके, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेट हो चुके थे क्योंकि ज़्यादा सांस लेना था आपको उस टाइम पे लड़ने के लिए, अभी क्या होगा, वो कंस्ट्रिक्ट होगा, नॉर्मल हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन टू द नॉर्मल। ओके, जो भी पीपल डायलेट हुआ था, आपका आँख का साइज बड़ा हुआ था, यू नीड अ प्रिसाइज विजन फॉर फाइट और रनिंग। सो अभी तो फाइट भी नहीं करे हो, रन भी नहीं करे हो, ठीक है। घर में हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल टू द नॉर्मल, ठीक है। अभी उस टाइम पे जो भी सिक्रेशन था, सलाइवरी सिक्रेशन या भी जितने भी सिक्रेशन थे सप्रेस हो चुके थे, अभी क्या होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मम्मी ने खाना बनाया है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। सो सलाइवरी सिक्रेशन विल इंक्रीज इन द सिक्रेशन टू द नॉर्मल। स्टमक स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस आपका सिंपैथेटिक में इनहिबिट हो चुका था, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्सिस। ओके, घर पे आने के बाद भी आपको पता चलेगा कि यार मैं तो भाग के आ गया हूँ, अभी मेरे को टॉयलेट जाना है, टॉयलेट में जाओगे, यूरिन पास होगा आपको, ठीक है। सो यूरिनरी कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर, सो यूरिनेशन। घर में आने के बाद पता चलेगा आप बाथरूम में भी जा रहे हो, सो डिफिकेशन। सो ग्लैंड्स का सिक्रेशन, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक जूस, एसिड फॉर्मेशन, इट विल बी इंक्रीज्ड क्योंकि आपको खाना खाना है अभी। सो यूरिथ्रल स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स्ड टू परमिट द यूरिनेशन। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ विसरल, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही रहेगा। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटल ब्लड वेसल आपके रिलैक्स हुए थे कब, जब आप फाइट कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा लग रहा था आपको उस मसल के लिए। अभी आप फाइट नहीं कर रहे हो, रिलैक्स बैठे हो घर पे आके, नो, ओके। सो इट विल बी कंस्ट्रिक्टेड अप टू नॉर्मल, ठीक है। लीवर में जब अपन जंगल में थे, टाइगर के था आपके सामने, ग्लाइकोजनोलाइसिस हुआ था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अभी एनर्जी नहीं लग रहा तो नो ब्रेकडाउन। पैंक्रियाज में देखो उस टाइम पे सप्रेशन हुआ था, ग्लूकागॉन सिक्रेशन हुआ था, इंसुलिन नहीं। ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द शुगर लेवल इन द बॉडी। अभी क्या है, अभी आपको शुगर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, adrenal gland no effect. So these sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, they works in a coordinate manner, ठीक है। whenever there is a threat, sympathetic nervous system will be activated, when there is no threat, parasympathetic nervous system activated। sympathetic nervous system का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। पैरासिम्पैथिक का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन, ठीक है, एसिटिलकोलिन। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं आपको? आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो, एम आई ऑडिबल? समझ रहे हैं आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है सेम थिंग। सो एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, note yourself. Sympathetic nerves, they are originating from the spinal cord, particularly this thoracic region, lumbar region. So it is known as a, okay, cervical region also there, superior cervical region is also there. It is known as a thoracolumbar outflow. Sympathetic outflow is known as thoracolumbar outflow. Sympathetic outflow is known as thoracolumbar outflow. ये नर्व्स वहाँ से आएंगे, ठीक। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट अपने देखा है आइज के ऊपर, आइरिस मसल क्या होगा, पिपिल डायलेशन, माइट्रियासिस, पिपिल में भी
dilated mydriasis and accommodation of vision for long distance. आपको precise vision दिखेगा ना long distance. Again salivary gland inhibition of secretion. Oral and nasal mucosa secretions are inhibited. सिम्पेरिक में secretions inhibit होंगे. स्केलेटल ब्लड वेसल का जो है वो डायलेशन होगा क्योंकि आपके स्केलेटल ब्लड वेसल का डायलेशन होगा क्योंकि मसल को वर्क करना है. हार्ट में क्या होगा? हार्ट में रेट ऑफ हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन विल बी इंक्रीज. कॉर्नियल आर्टरी जो है हार्ट का वो डायलेट होगा. ब्रोंकियल्स मसल जो है ब्रोंकोडायलेशन होगा. स्टमक में क्या होगा? इनिबिशन ऑफ स्पिरिटास एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड. लीवर में क्या होगा? ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन रिलीज होगा. ग्लूकोज कन्वर्जन इज इंक्रीज्ड, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. स्प्लीन में एड्रेनल मेडुला में क्या होगा? स्प्लीन विल बी कंस्ट्रिक्टेड, एड्रेनल मेडुला रिलीज ऑफ एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इन द ब्लड. इंटेस्टाइन जीआईटी में क्या होगा? सप्रेशन. पेरिस्टाल्सिस विल बी रिड्यूस्ड, स्फिंक्टर आर क्लोज्ड, ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड. ओके. किडनी में क्या होगा? यूरिन रिटेंशन. ब्लैडर में क्या होगा? स्मूथ मसल रिलेशन, मोर यूरिन विल बी अवेलेबल इन द ब्लैडर. और बाकी सेक्स ऑर्गन के ऊपर क्या होगा? सो ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट, ये सब आपको फालतू चीज़ें सोचेगी नहीं. सो इंक्रीज द ग्लैंडुलर सेक्रेशन एंड इन केस ऑफ मेल इजैकुलेशन विल बी देयर. दीज आर द एक्टिविटी ऑफ सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम. एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम. Parasympathetic nervous system is known as a sacral outflow. Okay, it is known as a sacral outflow. सैक्रम से ज़्यादा नर्व्स उसका आता है. तो sympathetic nervous system thoracolumbar outflow and it is known as a cervicosacral outflow. ऑपोजिट ऑप्शन. तो आइज के ऊपर गए पिपिल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन. जो भी आइज में क्या होगा? लैक्रिमल ग्लैंड में सिक्रेशन ऑफ टीयर्स. घर पे आके आप टाइगर के साथ में लड़के आ गए, घर पे आके आप रो हो गए. सलिवरी ग्लैंड्स, सबग्लैंड, सभी जो ग्लैंड्स है सब सिक्रेशन इंक्रीज होगा. हार्ट रेट नॉर्मल होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, करने जाके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, आपको नॉर्मल. स्टमक में एसिड जनरेट होगा, पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होगा. लीवर में क्या होगा? लीवर एंड जो जाएगा सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ओके, दैट विल बी इंक्रीज्ड. किडनी में क्या होगा? यूरिन सिक्रेशन विल बी इंक्रीज्ड. इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा, खाने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा. ब्लैडर में क्या होगा? स्मूथ मसल वॉल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट यू कैन पास यूरिन. मेल्स में क्या होगा? इरेक्शन होगा. जब आप पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होते हो तभी आपको ये सब चीज़ें. मेल में इरेक्शन होगा, फीमेल में पोस्टीरियर साइकिल. जब आप थ्रेड में होते हो ना तो ये सब चीज़ें सप्रेस हो जाती है. ओके. और जब आप रिलैक्स होते हो तभी ये सब चीज़ें आ जाती है. सो सिम्पेथेटिक पैरासिम्पेथेटिक. डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्रेन. डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्रेन. सो इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर. पहला होता है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर. सो इफ देयर इज ए इंक्रीज्ड प्रेशर इन द ब्रेन ड्यू टू, प्रेशर कहाँ से इंक्रीज होगा? CSF. सो ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CSF और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ CSF. नाउ वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है CSF का? कब हो सकता है? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ CSF. व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन वाई देयर विल बी इंक्रीज. सो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF देयर माइट बी इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CSF व्हिच विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन ब्रेन. और ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ फ्लो ऑफ CSF. अगर फ्लो ब्लॉक होगा तो भी ब्रेन में CSF बढ़ जाएगा. अगर CSF जो है वेंट्रिकल से स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आ रहा है, ब्लॉक हो चुका है फ्लो, व्हाट विल हैपन? CSF विल बी इंक्रीज्ड इन द ब्रेन, इट विल इंक्रीज द प्रेशर इन द ब्रेन. इट इज नोन एज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर. व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ब्रेन, फर्स्ट रिफ्लेक्स विल स्टार्ट, दैट इज वोमिटिंग. आपको वोमिटिंग हो जाएगा. प्रेशर बढ़ गया खोपड़ी में, वोमिटिंग हो जाएगा. सेकंड, आपको प्रेशर बढ़ गया खोपड़ी में, आपको बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा. यू कैन नॉट बैलेंस योर सेल्फ. आप गिर जाओगे. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे. सो इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ your CSF or decrease the flow of CSF
और ड्यू टू सेरेब्रल इडिमा ब्रेन में आपकी सूजन आ गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और ड्यू टू हीमोरेज ब्रेन में अगर कोई ब्लीडिंग हो गया, आप गाड़ी में से गिर गए हो या आपका झगड़ा हो गया, किसी ने मार दिया, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, हीमेटोमा हो गया, तो सी सबको प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्रेन में ट्यूमर है, सी सब प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो उसमें इट इज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। उस टाइम पे क्या करता है, न्यूरो सर्जन आपका एक सर्जरी करता है, ब्रेन को, खोपड़ी को खोल देगा, उसमें आपका एक स्टंट डाल देगा, स्टेंट, तो एक ब्रेन में डाल देगा, उसका एक नली जो होता है, उसका जो पैसेज है वो वहाँ से आपके नेक से आपके स्टमक में डाल देगा। ठीक है, मतलब जो भी ज़्यादा सी सब बन रहा है ब्रेन में, वो सी सब ड्रेन होके आपके स्टमक में जाएगा, तो उसको बोलते हैं वीपी शंट। वीपी शंट, वेंट्रिकुलर शंट, वो एक ऑपरेशन होता है ब्रेन में। ये अपने जीपैड के लिए नहीं है, ये एक्चुअली ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होता है, सपोज इफ़ यू गॉट इंक्रीज्ड प्रेशर इन द ब्रेन, मीन्स इंक्रीज्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन, सी सब ज़्यादा हो गया ब्रेन में। ओके, सी सब ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, सी सब इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इधर ओवर प्रोडक्शन ऑफ योर सी एस एफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, या फिर सी एस एफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, या फिर आपका सी एस एफ ड्रेन नहीं हो रहा है। सी एस एफ ब्रेन में बनता है, सी एस एफ इज synthesized in the ventricles. Okay, it is a synthesized in the ventricles of brain. Then it is a passed through the brain as well as spinal cord. Spinal cord में भी pass होता है. Suppose if there is a blockage of CSF flow in the spinal cord, so what will happen? So there will be increased pressure in the brain. So it is not only because of the spinal cord, because of the CSF, it is also because of the cerebral edema, then hemorrhage, इसकी वजह से भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्लो ऑब्स्ट्रक हो गया, इफ देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ CSF फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, सो व्हाट हैपन, सो ड्यू टू दैट देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड यू मे सफर फ्रॉम वॉमिटिंग, देन बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन, मेमोरी लॉस हो जाएगा आपका, बहुत सारा चीज़ होता है। सो टू करेक्ट दैट, मतलब वो आपको वो को क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आप प्रेशर बढ़ गया, तो वो प्रेशर कम करना है आपको। तो फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, बाद में MRI वगैरह, उसको पता चलेगा कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया है, वेंट्रिकुलर साइज बढ़ गया है। वो क्या करेगा, वो फिर करेगा आपको इमीडिएटली सजेस्ट करेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम है वीपी शंट। ठीक है, वीपी कैपिटल VP शंट, तो उसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स में वो शंट डाल देगा, मतलब आपकी खोपड़ी ओपन करेगा, वेंट्रिकल्स में वो शंट डाल देगा, जहाँ से वो एक्स्ट्रा जो सेल्स है वो ड्रेन होके, वहाँ से ड्रेन होके वो फिर यहाँ से नेक के अंदर में से ही आपका एक पैसेज देगा, आपको एक ट्यूब डाल देगा उसमें, और वो ट्यूब आपके स्टमक में छोड़ देगा ऑपरेशन करके। मतलब वहाँ पे एक तो दो ऑपरेशन करना पड़ता है, एक तो ब्रेन को खोलना पड़ेगा शंट डालने के लिए, वहाँ पे नेक के ऊपर एक 2 स्टिचेस का ऑपरेशन होता है, वहाँ से डालने के लिए नली, और वो स्टमक में भी, स्टमक का भी छेद कर देगा स्टमक में, वहाँ पे भी एक ऑपरेशन होता है। ओके, उसको बोलते हैं वीपी शंट। तो जब भी से ये सब आपके बॉडी में बढ़ेगा, ब्रेन में बढ़ेगा, तो आपको वहाँ पे एक जो ऑपरेशन किया आपका हेड में, वहाँ पे एक बटन दिया जाता है, उसको प्रेस करना पड़ता है। जब भी आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि यार अभी अच्छा नहीं लगा, तो वो प्रेस करना है दिन में, और वो प्रेस करने के बाद में वो जो एक्स्ट्रा सेल्स है वो खींच लेगा और वो आपके स्टमक में जाएगा, तो उसको बोलते हैं वीपी शंट। ओके, तो ये एक्स्ट्रा है, एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीपैड। चलो, देन problems, brains disorders, increased intracranial pressure, hydrocephalus, abnormal increase in the CSF because of the obstruction of flow, तो वो hydrocephalus होते हैं, उसकी वजह से भी increased intracranial pressure increase होगा। hydrocephalus में वो ऑपरेशन करते हैं, hydrocephalus में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। सेरेब्रल हाइपोक्सिया, आपके सेरेब्रम को अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो सेरेब्रल, ब्लड प्रेशर लेस देन 60 mmHg, अगर ब्लड प्रेशर 60 mmHg से कम है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन अफेक्टिंग द सेरेब्रल ब्लड वेसल, सो हाइपोक्सिया स्टेट मोर देन 2 minutes, if there are more than 2 minutes hypoxia to the brain, so brain will start, so blood pressure less than 60 mmHg, क्या नहीं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, if there is a decreased blood pressure to your cerebrum,
आपके ब्रेन में ब्लड प्रेशर कम हो गया है 60 mmHg, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन अफेक्टिंग द सेरेब्रल ब्लड वेसल डायलेट हो गए या फिर डिजेनरेट हो गए, ब्लड कम जाएगा ना सेरेब्रम को, ब्लड प्रेशर कम होगा, सो दैट रिजल्ट इन द हाइपोक्सिक स्टेट टू द ब्रेन and it will affect the neurological cells. It will cause death due to occlusion of cerebral artery or arterial stenosis. Cerebral artery अगर ब्लॉक हो गया है फिर कहीं तो भी बंद हो गया because of the stenosis or cerebral artery or occlusion. So you will get less blood pressure to the cerebrum. That result in the cerebral hypoxia. Hypoxia may be because of the cardiorespiratory arrest. तो आपका अगर हार्ट फेल हो गया तो भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, या फिर मतलब का हार्ट फेल हो गया तो ब्लड प्रेशर आएगा ही नहीं. दैट इज ऑल्सो हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ ऑल्सो हार्ट फेल्यूर, ओके, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, सडन सीवियर हाइपरटेंशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, देन हाइपर क्या है, ड्रग पॉइजनिंग. सो cerebral hypoxia means ultimately less oxygen to cerebrum. cerebrum मतलब आपका ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन सेल विल स्टार्ट डाइंग. ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता ब्रेन को, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. पहला रीज़न क्या है, अगर आपके ब्रेन को ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ठीक है, इफ ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन इज लेस देन 60 mmHg, ब्लड प्रेशर आपका कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजन, सेरेब्रल ब्लड वेसल ऑक्लूजन हो गया है, फिर डायलेट हो गया है उसका, सो हाइपोक्सिक स्टेट विल बी देयर. सो इफ मोर देन 2 minutes हाइपोक्सिया टू द ब्रेन इज मोर देन 2 minutes, 2 minutes से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन नहीं मिला ब्लड को ब्रेन को तो ब्रेन सेल विल स्टार्ट डाइंग. हाइपोक्सिया में बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट, सडन सीवियर हाइपोटेंशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और इट मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रग पॉइजनिंग. बहुत सारे रीज़न होते हैं एक हाइपोक्सिया के. नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस. मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फेक्शन टू द लेयर्स ऑफ ब्रेन, ओके, जो होता है ड्यूरामेट्रल, पीएमेट्रिक और एक्नोमेट्रिक. ओके, मेनिंजिस, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस टू द ब्रेन with this bacteria will cause infection, so like Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, okay, Streptococcus aureus, so उसके इन्फेक्शन होते हैं. so because of that there is a meningitis, सीजर्स वगैरह आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ब्रेन डैमेज होगा. एन्सेफेलाइटिस मीन्स वायरल अगर इन्फेक्शन है वायरस का तो बोलेंगे एन्सेफेलाइटिस, ओके, जो मुझे भी हुआ था. Infection of meninges of brain is known as a meningitis. It may be due to different bacteria like Haemophilus influenza will cause meningitis in a 2 to year of age mostly. Streptococcus pneumoniae will cause meningitis beyond 30 year of age. Neisseria meningitis will cause 50 to 30 years. बहुत सारा रीज़न होता है. उसके और एक होता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस. टीबी का इन्फेक्शन है, आपको बहुत दिन से क्लियर नहीं हो रहा, तो उसका इन्वेंशन होता है ब्रेन में. और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का हर एक का होता है. एन्सेफेलाइटिस हर एक का मतलब ऐसा है कि जो पेशेंट का किसी को होता है किसी को नहीं होता. एन्सेफेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन बाय वायरल. स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस. देखो अपन टर्म यूज़ करते हैं पैरालिसिस, लेकिन वो पैरालिसिस नहीं होता है, वो स्ट्रोक होता है. वो स्ट्रोक होता है. पैरालिसिस कॉमन टर्म है, पैरालिसिस ऐसा कोई टर्म नहीं होता, स्ट्रोक होता है. सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन, ब्लड वेसल क्यों ब्लॉक हो सकता है, इट इज़ मे बी ड्यू टू रेडिएशन. कोई अगर हैमर हो गया, ब्रेन को डैमेज मतलब मार दिया दिमाग के ऊपर, तो क्या होता है, ब्लीडिंग हो गया अंदर. ब्लीडिंग होने के बाद क्लॉटिंग भी होता है, क्लॉटिंग होने के बाद वो ब्लड वेसल ब्लॉक होता है. सो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर विदाउट एनी डैमेज क्लॉटिंग हो रहा है आपकी बॉडी में ब्लड का, स्मॉल क्लॉट, तो दैट इज ऑल्सो रीजन. सो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल व्हाट हैपन्स, अगर ब्लॉकेज हो गया तो जो एरिया को वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है ब्लड, वो सप्लाई नहीं हो जाएगा और वो मर जाएगा एरिया, मतलब वो सेल्स मर जाएंगे. ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, सपोज क्लॉट बन गया आपकी बॉडी में, वो क्लॉट गया है सेरेब्रल ब्लड वेसल में,
ब्रेन के, और वो क्लॉट गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में गया तो वो क्लॉट लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो एरिया सप्लाई करने वाला है ब्लड, जो एरिया को ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लॉक हो गया, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर को ब्लड नहीं जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, आपका राइट साइड पैरालिसिस होगा। लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर में ब्लॉकेज है तो राइट साइड पैरालिसिस होगा, राइट साइड के ऊपर हेमिस्फीयर में ब्लॉकेज है तो आपका लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा। मोस्ट कॉमनली ब्लॉकेज इज एट अ राइट हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई मोस्ट कॉमनली जो पैरालिसिस होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। इट इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन द ओल्डर अडल्ट्स। क्या? स्ट्रोक। मेनी फैक्टर्स आर देयर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज अगर है, हाइपरटेंशन है, ओके, डायबिटीज़ है, अर्थरोमा है, डायबिटीज मिलिटस है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सबसे बड़ा कॉज है सिगरेट स्मोकिंग स्ट्रोक का। डिमेंशिया मीन्स व्हाट? डिमेंशिया मीन्स it is caused by progressive irreversible degeneration of cerebral cortex and resulting in mental deterioration and usually over the several years. डिमेंशिया मतलब इंटरेस्ट नहीं हुआ, डिमेंशिया भूल जाना, लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स डिमेंशिया। इट इज कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डीजनरेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखो जो 60 के बाद है ना, 60 अगर आपका एज 60 है, 60 के बाद में क्या होता है, आप उतना प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, प्रॉपरली याद नहीं रख पाते हो, है ना। आपके घर में दादा दादी जी होंगे, उनको समझ में नहीं आता जल्दी, उनको भूल जाते हो, उनको बोला 10 बार बोलना पड़ता है क्योंकि उनको डिमेंशिया होता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। नॉर्मल 60 ईयर के बाद में आपका ब्रेन न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेशन होता है एंड उनका फंक्शनल कैपेसिटी कम होता है। सो उसमें दादा जो बूढ़े होते हैं उनको प्रॉपरली समझ नहीं आता, उतना फास्ट समझ नहीं आता, उतना रिएक्ट नहीं करेंगे फास्ट। आप भी बोलेंगे तो 5 मिनट के बाद में रिएक्ट करेंगे, उसके बाद में वो भूल जाएंगे, वो चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, डिमेंशिया। अल्जाइमर डिसीज एक होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अल्जाइमर डिसीज, देन पार्किंसन डिसीज क्या होता है, हम देखिए उन बारे में। सो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर डिसीज usually affected to the old people 60 year age and more age. Degeneration of cholinergic neuron, एसिटिलकोलिन कंटेनिंग न्यूरॉन जो होते हैं पैरासिम्पैथिक सिस्टम के, वो उनका डिजेनरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्रेसिव एट्रोपी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स accompanied by deterioration and mental function commonly found with the people with the Down syndrome। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, इसमें भी आपका एसिटिलकोलिन क्या है, लेवल कम हो जाता है, डिजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व, बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन अमनेशिया, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। तो आपने एक मूवी देखा होगा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें देखो विक्की कौशल जो एक्टर होता है, उनकी मम्मी जी होती है, उनको अल्जाइमर्स डिसीज होता है, तो वो भूल जाती है, वो घर का पता ही भूल जाती है, वो किधर भी जाती है समझ में आता। वो विक्की कौशल 2 दिन के पहले से आया, लेकिन वो उसको पूछती कब आया, वो डिमेंशिया। सो अल्जाइमर डिसीज, डिजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व, इतना याद रखो, उसमें फिर बैलेंसिंग बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सो अल्जाइमर डिसीज, डिजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, डिफिशिएंसी ऑफ एसिटिलकोलिन। नेक्स्ट होता है हंटिंगटन डिसीज। अल्जाइमर डिसीज, डिजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। आपको एक डायरेक्टली नेक्स्ट लूँगा पार्किंसन डिसीज, कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर आपको चैप्टर से। सो पार्किंसन डिसीज, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन। सो डिजेनरेशन ऑफ डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन, पार्किंसनिज्म, डिजेनरेशन ऑफ एसिटिलकोलिन कंटेनिंग न्यूरॉन, अल्जाइमर्स डिसीज। ठीक है, अभी और आपने एक मूवी देखा होगा, एक 90s का मूवी है, उसका नाम है राजा। उसमें संजय कपूर होता है हीरो, माधुरी दीक्षित होती है हीरोइन, और परेश रावल भी होता है। परेश रावल जो होता है वो संजय कपूर का बड़ा भाई होता है। तो परेश रावल जो है, उनको उस मूवी में पार्किंसन होता है। तो कैसे चलता है, शेकिंग करके चलता है, सलाइवा उससे मुंह में से आता है, सलाइवेशन, शेकिंग ऑफ मूवमेंट, टिंगलिंग, ओके, ट्रिमर्स, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। सो उस मूवी में पार्किंसन होता है। उसमें गाना है, देखो बहुत सारे गाने, उसमें हिट गाने थे, अच्छे गाने, कुरान हो गया, ऐसा हो गया, बहुत अच्छे से गाने थे। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन, दैट इज नोन एज अ
पार्किंसन डिसीज, ओके। सो कैरेक्टराइज बाय ब्रैडिकाइनेशिया, मसल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मसल ट्रेमर्स, पिन रोलिंग मूवमेंट, पिन रोलिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर, मतलब कुछ काम नहीं, सिर्फ जैसे फिंगर्स में पिन रोलिंग कर रहे हो। स्पीच प्रॉब्लम, पोस्चर प्रॉब्लम, मसल ट्विचिंग, फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब चल फिर नहीं सकती है, पोस्चर उनका खराब होगा। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव बट नॉट मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ठीक रहेगा, आप बात कर सकते हैं आपसे नॉर्मल पर्सन की तरह, ठीक है, सब मेमोरी वगैरह सब ठीक है। बस यहाँ पे डोपामाइन की डेफिशिएंसी की वजह से उसका ट्रिमर्स वगैरह होगा, पोस्चर। सो अल्जाइमर डिसीज डेफिशिएंसी ऑफ एसिटिलकोलिन ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, याद रखो। पार्किंसन डिसीज ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। हंटिंगटन डिसीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली आया है जीपैट में। हंटिंगटन डिसीज सो यूजुअली अफेक्ट बिटवीन 30 to 50 years of age. इट इज़ अ जेनेटिक इनहेरिटेड डिसीज, जेनेटिक डिसीज होता है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ गाबा, एज इट क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। डिफिशियंसी ऑफ गाबा, डिफिशियंसी ऑफ गामा अमाइनोबुटारिक एसिड which is an inhibitory neurotransmitter in the brain. So inhibitory neurotransmitter होता है, इसका डिफिशियंसी होगा तो हंटिंगटन डिसीज, क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंडरी डिमेंशिया, vascular dementia is also known as a multi-impact dementia because of the cardiovascular disease. Toxic dementia is because of the alcohol and solvent misuse, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेवड़ा है, दारू पीता है डेली, तो क्या होगा, डिमेंशिया हो जाएगा, उसको भी मेमोरी लॉस हो जाएगा। सॉल्वेंट का मिसयूज़, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है जैसे क्लोरोफॉर्म, इथर वगैरह, उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है। अगेन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, डिमेंशिया हो जाएगा। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाएगा वो सब कुछ। आर यू गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट इज नथिंग बट द पोलियोमाइलिटिस, ये डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम है। पोलियोमाइलिटिस, इट इज बिकॉज ऑफ द पोलियो वायरस एंड ऑकेजनली बिकॉज ऑफ द एंटेरोवायरस which causes the paralysis of muscle and may cause death, permanent death due to respiratory paralysis. अभी ये मसल का पैरालिसिस करता है तो सिलेक्टेड मसल के नहीं करेगा, आपके रेस्पिरेटरी मसल का उसका भी पैरालिसिस करेगा। रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो गया तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता आपका, और रेस्पिरेशन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, मर जाओगा। सो इट इज़ अ पोलियोमाइलिटिस कॉज बाय पोलियो वायरस और सम एंटेरोवायरस, ठीक है, बचपन से ही किसी को पोलियो होता है। Then next is a multiple sclerosis. Multiple sclerosis means demyelination of neuron, as I told you in the initial slides. Demyelination of neuron, white matter plaque. Okay, demyelinating the demyelination of neuron. There is deposition of white matter known as a plaque, which replaces the myelin sheath. It is a demyelination disease. Usually develops between the age of 20 to 40. Weakness of skeletal muscle and sometimes paralysis, loss of coordination of movement and disturbed senses. Multiple sclerosis. Motor neuron disease. Next is a motor neuron. So it is again a progressive degeneration of upper and lower motor neuron in the main over 50 years of age. एक साइंटिस्ट है, देखो इसका नाम है, एक साइंटिस्ट है, ऐसे व्हीलचेयर है उनका और लैपटॉप के ऊपर टेडी गर्दन करके बैठे होते हैं, नाम है उनका, एनीबडी? यस, स्टीफन हॉकिंस. सो स्टीफन हॉकिन was suffering from this motor neuron disease. Stephen Hawking was suffering from motor neuron disease. It is a progressive degeneration of upper and lower motor neuron in the main over 50 years of age. So motor neurons of cerebral cortex and brainstem and bones are affected. So that's why the person is not able to do the regular duty. मतलब वो उसका पूरा मसल जो है, मोटर मसल्स, वो डिजेनरेट होता है, उसकी उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहता, वो एक पेंसिल भी खुद के हाथ से नहीं उठा सकता, खुद के हाथ, मतलब वो इसीलिए वो स्टीफन हॉकिंस जो है साइंटिस्ट, सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिसीज. देन बेल्स पल्सी, नेक्स्ट वन इज अ बेल्स पल्सी. बेल्स पल्सी क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ फेशियल पल्सी और फेशियल पैरालिसिस. इट इज ड्यू टू द कॉम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व. जो फेशियल नर्व होता है आपका, उसका अगर कॉम्प्रेशन हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, बेल्स पल्सी होता है. सुबह सुबह आप देखोगे, कल तो अच्छा था, सुबह सुबह उसका मुंह टेढ़ा हुआ है, बेल्स पल्सी. इट इज़ ऑल्सो अगेन ड्यू टू द टीथ कैविटीज़. अगर बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी टीथ में, आपका दांत सड़ गया है पूरा और आपको बहुत पेन होता है,
तो वो क्या होता है, और आप उसको बार बार टच करते रहते हो, हालांकि कभी कभी क्या होता है कि वो नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेशियल डैमेज टू द फेशियल नर्व बेल्स पल्सेस, बिकॉज पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल एंड ड्रॉपिंग एंड लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो वो बंदा कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकता, टेड वन साइड, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक साइड का फेशियल मसल पैरालिसिस हो जाता है, एक साइड का फेशियल मसल पैरालिसिस हो गया तो यहाँ से उसका एक्टिविटी बंद हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। तो देखो उसमें किसी को फेशियल पैरालिसिस अगर हो गया तो फिजियोथेरेपी में बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज देते हो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुँह करने का, ऐसा क्यों कि मसल एक्टिवेट हो जाए इसलिए, है ना। अपन किसी को चिढ़ाते हैं ना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, तो वो करना चाहिए, आप भी करते जाओ मुंह टेढ़ा मेढ़ा, कम से कम सामने नहीं लेकिन अकेले बैठे करते हो, क्योंकि अभी मसल एक्टिवेट हो जाएंगे वो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है गुलियन बार सिंड्रोम, उसको बोलते हैं जीबीएस। नेक्स्ट सिंड्रोम इज नथिंग बट द गुलियन बार सिंड्रोम, उसको बोलते हैं जीबीएस। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी। तो जो पेरिफेरल नर्व है आपका उसमें ये अफेक्ट होता है, न्यूरोपैथी उसका हो जाएगा। इसमें भी वैसे आप स्ट्रेंथ वगैरह लॉस हो जाएगा, खड़े नहीं रह सकते पैर के ऊपर, और रह गए तो ड्रॉप हो जाओगे, पड़ जाओ, गिर जाओगे। सो सडन प्रोग्रेसिव बायलैटरल असेंडिंग मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस बिगिनिंग फ्रॉम लोअर लिम्ब एंड स्प्रेड टू द आर्म्स ट्रंक्स एंड cranial nerve, Guillain-Barré syndrome. It is because of the one Guillain-Barré syndrome, acute inflammatory polyneuropathy, पेरिफेरल नर्व्स का न्यूरोपैथी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। Then spina bifida is neural tube defect, you know that. So congenital malformation of embryonic neural tube and spinal cord. Exact cause is unknown, but it is related with the deficiency of folic acid. Also, there are prodrugs which also has an adverse effect of spina bifida, like your valproic acid, carbamazepine. So they are known as teratogenic drug. So this was regarding the nervous system. नर्वस सिस्टम समझ सगळ्यांना समझ में आया है आपको, ठीक है। और भी आपको